Welcome everybody to the 6th day of Navras, Festival of Asian Literary Society. Today we are having our guest Dr. Amita Parshuram. Dr. Amita Parshuram is a professor of psychology who has been involved in teaching, training and therapy for more than 30 years. As a psychologist, she has had an insatiable interest in women's the perspective of human relationships, and she's well-known poet as well as shaira. Her poetry is sensitive and is a vivid reflection of experiences of human being. Now I request Dr. Amita Parshuram to address us on today's topic, maintaining mental health in the time of coronavirus. Thank you. Thank you, Manoj and Asian Literary Society. Um, I'm requesting people who are joining us to please write something so that I know that you are with me. We'll take a couple of minutes to start the talk for this evening. Once I know I have people with me, the topic is very relevant to the times. Many people ask questions about how to maintain mental health, how to maintain mental health in these very, very challenging, very difficult times where life is just changed in such an enormous way that we really don't know where it's coming from. We don't know where it's going to go. And yet, we are in the middle of it. We are responsible for dealing with it. And we are facing many different kinds of challenges. I have been told that people who join can ask questions in writing, which will be addressed after the talk. We have about roughly 27 minutes or so, but I'm not seeing too many people yet. There is one person, Facebook user, Salam. Salam from the unknown. I'll wait for a minute or so, and there can be certain kind of differences in people's clocks. And I hope that what few tips that I bring with me because of my background are going to be helpful in whatever limited ways that we are living with, the constraints that we are living with. They may still be able to open some new ways of creating happiness and mental health and physical health for you. Um, Maybe I should begin. I am not in a position to see how many people join or has anyone joined. I can know only by looking at the messages where I see just one person, but I'm sure slowly people will join, and so I think I begin sharing with you what I have come here for. Um, Everyone is talking about physical health. सब ये कह रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और ठीक खाएं, अच्छा खाएं, विटामिन लें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हम तक पहुंची हैं डॉक्टर से जो कि ये बताती हैं दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर body. I'm here to tell you that you cannot take care of the body just by looking at your food, balanced food, and vitamins, etc., because mind and body are linked. If you're not able to look at your mental health, if you're not able to keep yourself peaceful, happy, then there is a possibility if the stresses go beyond a point that your body will be affected by it. So that's why I'm here today to talk about how your mind can be kept positive, how mental health can be preserved by doing very small little things which may not seem important in our day-to-day life, but today they are highly important.
There are many different reactions that people have towards a corona, depending on their personality. Some getting more affected, some are getting less affected by the kind of changes which have happened because of COVID-19. एक चेंज जो हम सब ने महसूस किया है और हम सब उससे परेशान हुए हैं, वो है कि हमारी फ्रीडम नहीं है, हम अपनी फ्रीडम से नहीं जी पा रहे हैं, हमें वो करना पड़ रहा है जो कि सिचुएशन डिमांड करती है. एंड ह्यूमन बीइंग्स डोंट लाइक anything or anyone cutting their freedom. So that can lead to a lot of frustration and sometimes anger. और बहुत से लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि घरों में अब्यूज बढ़ गई है, घरों में मार कुटाई बहुत बढ़ गई है, स्पेशली अगर कोई ऐसा अग्रेसिव फैमिली मेंबर है जो दूसरों की कदर नहीं करता. तो उससे क्या है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज कई तरह से आ रहे हैं. एक तो ये है और दूसरा ये कि काम बढ़ गए हैं और हेल्पलेसनेस फील हो रही है क्योंकि हम कोरोना को किसी तरह देख नहीं सकते हैं, कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते. सो यू फील वेरी डिसएम्पावर्ड. तो ऐसे हालात के चलते डिप्रेशन होना या उदासी होना या सैडनेस तक रहना बट डिप्रेशन ना होना, वरी में रहना, या फिर किसी तरह का डर कि क्या होगा अगर मैं बाहर जाऊं या कोई हमारे घर आ जाए. तो हमने कभी इतना ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस नहीं की जितनी अब करते हैं. अगर कोई बिजली वाला आ रहे हैं या कोई ऐसे नेसेसरी काम भी आए तो एक अजीब सा डर है कि पता नहीं वो अपने साथ क्या लेके आए हैं. तो इस तरह के हालात में बड़ा ज़रूरी है कि हम इन नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें. अब कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, कुछ कम. There are some people who are hardy people. They are able to deal with ups and downs. कुछ थोड़े नाजुक मिजाज होते हैं. क्या ज़रूरी है आज अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कि हम सबसे पहली बात जो मैं कहूँगी वो ये कि हमारी माइंड की जो सोच है, हम जो इसे इंटरप्रेट करते हैं एक रियलिटी को जो हम फेस कर रहे हैं, वो रियलिटी कैसे इंटरप्रेट हो माइंड में, उसका बहुत दूर तक असर जाता है कि हम कैसे इमोशंस के साथ जिए. लॉकडाउन को ही ले लीजिए. तो अब जैसे अगर 10 लोग बात करते हैं लॉकडाउन की और उसमें आधे लोग ये कहते हैं ये तो भाई हम तो कैद हो गए, आई मीन अ प्रिजन, कोई छूट नहीं है, हम क्या करें, वी हैव नो फ्रीडम, वी आर इन जेल में बैठे हैं. तो अगर ये सोच रहेगी तो यकीनन इनकी जो इमोशंस होंगी वो नेगेटिव होंगी और जो उनकी फीलिंग्स होंगी वो ऐसे होंगी कि फ्रस्ट्रेशन होगी. फ्रस्ट्रेशन क्या फीलिंग होती है? जब हम कुछ करना चाह रहे हैं और उसमें कोई अड़चन है. हम अपनी फ्री लाइफ जीना चाह रहे हैं लेकिन लॉकडाउन है, और अगर लॉकडाउन हट भी जाए तो लगता है अगर बाहर जाएंगे तो क्या हम बड़े आराम से बेखौफ मार्केट्स में नहीं घूम सकते, वो पहले की ज़िंदगी नहीं है. तो इस तरह जो इंटरप्रिटेशन है कि ये एक कैद है, हम बंद गए हैं या हम डिसएम्पावर हो गए हैं, ये आपके माइंड में उस तरह की इमोशनल स्टेट भी क्रिएट करेगी. लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स इसको रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये तो लॉकडाउन है तो है, हम नहीं जा पाएंगे, जाएंगे तो सेफ्टी के साथ जाना है, मास्क लगाना है, और ये एक चैलेंज है, तो वो कैद नहीं कहता, वो चैलेंज कहता है इसे. और इस चैलेंज को मैंने ओवरकम करना है, मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मैं इस चैलेंज के बावजूद एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव जिंदगी जी सकूं. वो इसको चैलेंज समझ के लेता है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है. अब बहुत पर्सनैलिटी डिफरेंसेस के बारे में बात की जा सकती है. एक है जैसे कि कुछ लोग इमोशन फोकस होते हैं, वो बस उसी चीज़ को बार बार रूमिनेट करते हैं माइंड में कि ज़िंदगी रुक गई, ज़िंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, लेकिन वो कभी सॉल्यूशन की तरफ कदम नहीं रखते. एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो सॉल्यूशन फोकस होते हैं. तो ये हम इमोशन पर फोकस रखें या सॉल्यूशन पर रखें, ये ऑब्वियसली हमारे माइंड की सोच पर निर्भर करता है. वी can look at it as a prisoner state, or we can look at it as a state in which, जैसे कि रियलिटी शोज में होता है, एक चैलेंज दिया गया है. अब नेचर ने या खुदा ने, भगवान ने एक चैलेंज दिया है, तो हम क्या करें, कैसे इसको ओवरकम करें. अब जो चैलेंज माइंड रखता है, चैलेंज की इंटरप्रिटेशन रखता है, वो ज़रूर सोल्यूशन ढूंढेगा. अब कहाँ हम सोल्यूशन ढूंढें? तो सबसे पहली टिप मैं ये दूंगी कि आप ये प्लीज़ इसको सबसे पहला थॉट बनाएं कि क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं है. व्हाट इज इट दैट आई कैन कंट्रोल, मेरे इख्तियार में है, और जो नहीं है वो क्या है. कोरोना आपके हाथ में नहीं है.
लेकिन जो आपके हाथ में है वो ये कि एक तो अपने आप को सेफ कैसे रखें फिजिकली, लेकिन मेंटली अपने आप को कंस्ट्रक्टिव कैसे रखें, ये भी काफी हद तक आप ही के हाथ में है। हमने जो पुरानी रियलिटी थी, हमारा नॉर्मल एक दिन होता था, वो अब नहीं बिता पा रहे, तो कई लोग बहुत गुस्से में या उदास या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बदल सकते हैं आज, तो ये कि हम एक न्यू नॉर्मल बनाएं। अब न्यू नॉर्मल क्या होता है, तो यहाँ एक्सेप्ट करके कि कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते, कुछ रियलिटी को अभी वापस आने में बहुत वक्त लगेगा। मूवी हॉल्स, मॉल्स, पार्टीज, ये सबको अभी बहुत वक्त लगने वाला है। इसको एक्सेप्ट करके हम सोचें कि भाई इस लिमिटेड हमारी लाइफ में हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में है कि हम खुश रहें, ना खुश रहें, क्या करें, ये आपके हाथ में है। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हमारी सोच होती है वहीं से हमारी इमोशंस निकल कर आती हैं। अगर सोच बदलेंगे तो यकीनन इमोशंस भी बदल सकती हैं, और एफर्ट आपने ही करना है। तो आई थिंक यहाँ एक और पर्सनैलिटी का डायमेंशन मैंने देखा है, सामने आ रहा है। जो लोग इस न्यू रियलिटी से बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जो बहुत रिजिड हैं, जो चेंज की तरफ उनकी रेजिस्टेंस है, दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, वो अपनी जिंदगी के एक बड़े कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई बदलाव आए। उन लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज इन लोगों से मैं कहूंगी, यू कैन नॉट स्टॉप चेंज। जिंदगी में तो हर वक्त चेंज होता ही रहता है, लेकिन इतना ड्रास्टिक कभी नहीं हुआ था, तो आपके लिए मुश्किल आ रही है। लेकिन इसको एक्सेप्ट जितनी जल्दी करेंगे कि ये बदलाव जरूरी है, तो आपके लिए आसानियत रहेगी। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी फ्लेक्सिबल, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, अच्छा ठीक है भाई अब ये करना ही पड़ेगा, तो उनकी जो माइंड है उसमें उस तरह की एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन इज वेयर सम पीपल आर स्टिल वेरी बैडली स्टक। ठीक है, तो ये हुआ पहला स्टेप कि इस रियलिटी को एक फैक्चुअलिटी समझ के अपने आप एक्सेप्ट कर ले कि आप नहीं बदल सकते। आप क्या बदल सकते हैं, आप अपनी नई नॉर्मल को बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब वो नया नॉर्मल क्या है कि एक दिन को स्ट्रक्चर करना। देखिए, खाली बैठकर सारा दिन खाली बैठे आप ये सोचें कि ये क्या जिंदगी बन गई, तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। आप अगर दिन रात वो जो फॉरवर्डेड व्हाट्सएप जो आप में पैनिक क्रिएट करते हैं उनको पढ़ते रहेंगे, तो कहेंगे कि भाई सब खत्म होने वाला है, तो एंजाइटी की तरफ जाएंगे। एक तो इस तरह के रिसोर्सेज को बंद कर दीजिए। इंफॉर्मेशन लीजिए कोरोना के बारे में, तो एक रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए, लेकिन फिर उसके बारे में ही नहीं सोचना, उसको एक्सेप्ट किया। And the sooner you can move to how do I create a new happy life within the limited times, within the limits imposed by the constraints. अपने दिनचर्या में एक ऐसी रूटीन बनाना जो नई रूटीन है, और उसमें आप वो सब इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। देयर आर इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस कि आपने आज एक बहुत अच्छा खाना बनाया। आई कैन सी मेनी पीपल पोस्ट थिंग्स, आई हैव कुक्ड दिस टुडे और दैट, आज मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा है कि हमारी रीडिंग जो छूट गई थी, हमें उसका वक्त मिल रहा है, हम किताबें पढ़ रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली में रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम पहले इतना भाग दौड़ में थे। तो ये एक पॉजिटिव सोच रखना कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें वो अच्छी वाली इमोशंस हम अब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका जरिया अलग है। पहले हम पार्टियों में जाते थे, अब पार्टी का सारा सीन बदल गया है, तो ये नहीं कि हम उदास रहें। यहाँ मेरे जहन में एक और बात आ रही है, एक पर्सनैलिटी से जुड़ी, कि जो एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं, जिनके लिए जिंदगी बहुत हद तक ये थी कि लोगों से मिलना, उनके लिए एक्टिविटी मजेदार तब होती है जब कोई चैलेंज हो, इवेंट हो, बहुत सारे लोग हों, बाहर जाना हो, तो उनके लिए थोड़ा एडजस्ट करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो इंट्रोवर्टेड लोग हैं उनके लिए while absence of freedom can be disturbing, being at home is not disturbing for them. तो एक्सट्रोवर्टेड लोगों से मैं ये कहूँगी कि देखिए ये एक फेज है, कितना वक्त लगे हम नहीं जानते, लेकिन आप अपने इस डिज़ायर को, इस चीज़ को कि हमें लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ऑनलाइन कीजिए। अपनी सेफ्टी को पहले सामने रखिए और एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, ये मिलना जुलना भी अब एटलीस्ट ना मिलने से तो बेहतर है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी हर सजेशन में जो बदलाव आना चाहिए वो है in the way you process information in your mind.
Because in psychology, what I follow personally is a paradigm called cognitive behavioral therapy. जहाँ cognition होता है आपकी सोच, आपके mental processes, higher mental functioning, और वो जैसी होती है उसके मुताबिक आपकी इमोशंस होती हैं और आपकी इमोशंस के मुताबिक आपके एक्शंस होते हैं. सो एक्शन इज कमिंग फ्रॉम इमोशंस एंड इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम योर थॉट्स. तो अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं, अगर आप फियरलेस फील करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप डर वाले थॉट्स को बार बार प्रोसेस नहीं कर रहे. बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस को पढ़ते हैं, नहीं पता है क्या हो गया या इतने लोग मर गए हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को नहीं देखते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे रिकवरी रेट्स भी बढ़ रहे हैं. वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत से लोगों को एंड में उनकी जिंदगी खोनी पड़ी. हमारा दिल उनके लिए रोता है, लेकिन उसके आगे भी तो बढ़ना है, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं तो हमें ये देखना है कि ये सिर्फ जीना नहीं है मर मर के, हमने अच्छी जिंदगी जीनी है. तो किसी हालात को एक्सेप्ट करके उसमें अडेप्ट करने के तरीके सोचने हैं, क्योंकि ये एक लंबी स्ट्रगल रहने वाली है. 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम है कि ये कहाँ जाएगा. तो क्या हम इंतजार करते रहेंगे कि कोरोना फ्री वक्त आए तो तब हम खुश हो पाएं? क्योंकि तब तक ये होगा कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ जीते रहते हैं, बहुत इंटेंस नेगेटिव इमोशन जो होती हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो या फिर आपकी एंजाइटी हो या पैनिक स्टेट्स हो या बहुत डर हो बहुत ज़्यादा, ये सारी की सारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं. अगर आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा है, और आजकल बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो गुस्सा बन के घर में कमज़ोर लोगों पर उतरती है, जो बच्चे हों या कोई काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प हो या कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो जो गुस्सा है या वो जो और नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर वो स्ट्रेस हार्मोन की फॉर्म में आपके खून में दौड़ रहे हैं, तो यकीनन अगर एक लंबे समय तक ये होता रहेगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग पर उसका खराब असर हो जाएगा. मैंने एक और जगह अपना एक एपिसोड डाला था जिसमें मैंने ये बात कही थी और मैं रिपीट कर रही हूँ कि देखिए, इस वक्त एक बड़ी अजीब सा विशेष साइकिल बना हुआ है. हमको बहुत ही अच्छे लेवल की इम्यूनिटी चाहिए टू मेक श्योर दैट कोरोना डजंट एंटर. अब वो इम्यूनिटी जो है वो आपके मानसिक संतुलन के साथ भी जुड़ी हुई है. तो अगर आप अपने मानसिक संतुलन को खो देते हैं और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस के साथ रहते हैं, फिर आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, फिर आपकी भूख मरती है या नींद मरती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ आ जाता है जो कि गड़बड़ा जाता है. तो उसके साथ धीरे धीरे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन अगर महीनों ये बात चलती है तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर उसका बुरा असर हो सकता है. तो जिस कोरोना से बचने के लिए हमें हाई इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए, उसी कोरोना को लेकर अगर हम वरी में डूबे रहेंगे, इमोशंस नेगेटिव में डूबे रहेंगे, तो वो हमारी उसी इम्यूनिटी को जो हमें चाहिए इरोड करता है. तो ये ज़रूरी है कि जब आप देखें कि आप किसी पर्टिकुलर इमोशन को बहुत देर तक जी रहे हैं, इसका मतलब आपके जहन में उस इमोशन को ट्रिगर करने वाले कुछ थॉट्स हैं जो वहाँ आकर घर कर बैठे. जैसे कि मैं देखती हूँ कई लोग बार बार कहते हैं, आज मैंने ये खबर पढ़ी, इसमें ये था, इसका तो कोई इलाज ही नहीं होगा. तो इस तरह की जो डराने वाली खबरें हैं, अगर उसमें सच्चाई भी हो तो उसको एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें कि भाई ये है, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आप उस पर फिक्स हो जाएंगे और सोल्यूशन नहीं निकालेंगे कि ये रियलिटी है, तो मैं अपने आप को ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे कि मेरे पर्सनल हैप्पी मोमेंट्स को मैं अपनी रूटीन का हिस्सा बना पाऊँ. तो ये मैं समझती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये देखें, आपका रोज का जो एक दिन है, जैसे पहले अगर वो स्ट्रक्चर था, अब उसमें आपने नया स्ट्रक्चर क्या बनाया है, और उस स्ट्रक्चर में हर तरह की इमोशंस, हर तरह के काम से जुड़ी होती है, डाइवर्स कमिटमेंट्स टू द डे. अभी ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, अभी ये खाना बनाने का है, फैमिली टाइम है, बच्चों के साथ खेलना है, उन्हें स्टोरी सुनाना है, या तो फिर अगर अलाउ करती है आपकी स्पेस तो थोड़ा वॉक करें. ये हर एक की जो सिचुएशन है अलग है, लेकिन सुबह से शाम तक ये फील हुआ, हाँ आज मैंने ये अच्छा किया, आज मेरा ये करने से मुझे कितना सुकून मिला. समटाइम्स हेल्पिंग समबडी एल्स कैन गिव यू सो मच हैप्पीनेस.
there are friends and relatives जिनसे कि आप मुद्दत से नहीं मिल पाए हैं, बात करें, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। कितनी मुद्दत के बाद, सालों के बाद मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया और हम बात करते रहे आधा घंटा। तो कितनी सारी बातें थी जो हमें उनके बारे में नहीं मालूम थी, उन्हें हमारे बारे में नहीं मालूम थी, क्योंकि हम लोग भाग-दौड़ में लगे थे। तो इस तरह से अगर मैं ये देखती हूँ कि हमने वो चीज़ें अपने नॉर्मल रूटीन में डालें जो हमारे दिन को स्ट्रक्चर करती हैं। ये दिन ऐसा ना हो कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। इसमें एक स्ट्रक्चर ऐड करें, अपने दिल का, अपनी मर्ज़ी का, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, चाहे वो ऊपर-नीचे सीढ़ियों से आना-जाना करें अगर कोई जगह नहीं है, अगर वॉक की जगह है या कहीं बाहर सेफ जगह है जहाँ आप मास्क पहन के वॉक कर सकते हैं, तो वो कीजिए। गाना सुनते हैं तो सुनिए, कहानी पढ़ते हैं तो पढ़िए, फ़िल्में देखते हैं तो आजकल क्या नहीं है, नेटफ्लिक्स वगैरह-वगैरह। लेकिन ये आपके अपने हाथ में है कि आप कितना नॉर्मल रहना चाहते हैं। दूसरी बात, बाकी के फैमिली मेंबर्स की तरफ भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक माहौल ऐसा घर में बने और वो सबकी तरफ से कोशिश हो कि टेंशन्स ना दें। 1-2 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो ये कि एक-दूसरे के लिए टेंशन दें या कोई ऐसा डोमिनेटिंग मेंबर हो फैमिली का जो सबकी ज़िंदगी अज़ाब बनाए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालें, मार-कुटाई करें या फिर डोमेस्टिक हेल्प है उस पर गुस्सा निकालें और नहीं तो हस्बैंड वाइफ का देखिए ये बहुत ही नाज़ुक वक़्त है और इस वक़्त की डिमांड है कि एक तो आपस में कम्युनिकेशन जो है वो प्यार से हो, एक-दूसरे के साथ रफ लैंग्वेज ना यूज़ करें। हम लोग सब बहुत एजी हो रहे हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी इमोशंस हैं जो एक्सप्रेस नहीं हुई हैं। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन को पॉजिटिव, सॉफ्ट, जेंटल बनाएँ। कुछ काम है तो भी प्यार से कहें, कुछ आप मना करना चाहते हैं तो भी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात, बच्चों का बहुत ख़ास ध्यान रखें। आज सुबह किसी ने ये सवाल पूछा था बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में एक लाइन में जवाब नहीं दे सकती मैं, लेकिन ये उम्र के हिसाब से अगर एक चीज़ जो कॉमन है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा है, प्लीज़ उनसे बात करें कि एक्सप्लेनेशन दे पाएँ उनकी उम्र के मुताबिक। जो 10-11 साल से छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ़ एक कॉन्क्रीट लेवल पे सोच सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहें हम खेलने क्यों नहीं जा सकते हैं? बस कह दिया नहीं जाना। अब आप ऐसे बात करेंगे तो बच्चे बेचारे परेशान रहेंगे। दे आर नॉट सपोज्ड टू बी होम बाउंड, उनकी तो उम्र है खेलने की। तो उस एम्पैथी को माइंड में रखते हुए कि हाँ, बच्चे को नहीं मालूम कोरोना क्या होता है, आप बैठें और छोटे बच्चों के साथ बैठें, बोलें, उसकी कहानियाँ जैसे सुनाते हैं। कोरोना को एक कैरेक्टर बना दें कहानी का कि बेटा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो दिखता नहीं है, लेकिन हवा में होता है, हमें ध्यान रखना है, अगर आ जाएगा तो हमें बुखार हो जाए। अब ये छोटा बच्चा तो यही समझेगा ना, तो उसकी एज के मुताबिक उसको प्लीज बताएं। नेवर अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रन, दे अंडरस्टैंड व्हेन यू एक्सप्लेन। और उनको घर के कामों में अगर उनका कुछ बनता है शौक तो उनको एंगेज करें। अगर उनको खेलना पसंद है तो उनके साथ आप इंडोर गेम्स खेलें, बातचीत करें। लेकिन डेफिनेटली जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो है मार कुटाई, अपना गुस्सा उन पे निकालना, एनी काइंड ऑफ अब्यूज। जैसे इमोशनल अब्यूज क्या होती है, जहाँ पर एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि पेरेंट्स कहें अब कह दिया ना, यहाँ बैठ जाओ, ये नहीं, जो मैं कहूँगी वही होगा, जो मैं कहूँगा वो होगा। आप बच्चे को उसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल वैल्यू ना करें तो उसके लिए बड़ी परेशानियाँ आएंगी, उदास होगा, एंशियस होगा या रोएगा या अपसेट रहेगा। तो ये एक ऐसा वक्त है फैमिली की लाइफ में जिसमें कि आपस में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। पहला, आपस में अच्छी पॉजिटिव लेवल पर कम्युनिकेशन हो, गंदी ज़बान ना इस्तेमाल हो, चाहे बड़ों के लिए या छोटों के लिए। बुजुर्गों की तरफ भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि उनकी डिपेंडेंस बहुत होती है। प्लीज़ बी, दूसरी रिक्वायरमेंट है बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी ये होती है कि हम महसूस कर पाएँ कि वो अपने अंदर क्या फील कर रहे हैं। एक बच्चा मैंने जाना है कहता है आपको बार-बार, आप इरिटेट होके ना, आप ये महसूस करें कि वो बच्चा 3 महीने पहले तक मज़े से गली में खेलता था, पार्क में खेलता था, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या फील कर रहा है। ये होती है एम्पैथी। या बुजुर्ग हैं, अब आपके पास अगर हेल्प नहीं है, जो पहले नर्स करती थी, अब आप नहीं बुला रहे नर्स डर के मारे, तो आपको ज़्यादा काम करना है तो उनकी मजबूरियाँ समझें। और
कपल रिलेशनशिप में और भी ज़रूरी है एक दूसरे की मजबूरी को समझें, और आज के दौर में मिलकर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इतनी औरतों की जो बात मुझ तक पहुंची है वो ये कि उनके काम बहुत बढ़ गए हैं, मदद नहीं मिल रही घर में, तो वो डिप्रेशन में जाती हैं। क्योंकि जब घर के लोग जाते थे, जो होम मेकर्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिताती थी, अब नहीं बिता पा रही हैं क्योंकि अब सबके सब वही हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त एम्पैथी, सो कम्युनिकेशन जो अच्छी तरह से हो, जो भी बात कहनी है, एम्पैथी होगी तो कितना अच्छा लगता है, हम एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएं। और इसके अलावा ये कि ईच वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल नॉट फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर द अदर्स अराउंड। और देखिए, हम लोग को ये शुक्र करना चाहिए जो हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, ये सोच कर भी कि हमारा चैलेंज जो है वो कम है। जो बेघर हो गए हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास ये नहीं है कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा, हम लोग, मैं अपने लिए कह सकती हूँ, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास वो फिक्र नहीं है। हमें मेंटल हेल्थ के लिए ये भी एक ज़रिया होता है अच्छा फ़ील करने का, अपने आप को खुशी देने का, पॉज़िटिविटी देने का, कि जो लेस एडवांटेज हैं, उनके लिए अगर आप करेंगे, बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अगर आप किसी लेस एडवांटेज को अपनी तरफ से कुछ मदद कर दें। और इन सब का जो एक मरकज़ी पॉइंट है, वो ये है कि ये तभी होगा जब हमारी सोच डर से, डर को चैलेंज बना लेगी, और नेगेटिविटी ऑफ व्हेन कोरोना हिट को अब फ्यूचरिस्टिकली पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करे कि अच्छा ठीक है, हम वो नहीं कर सकते, अब क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सब का जो मरकजी पॉइंट है वो है हमारी सोच, द वे यू थिंक। इफ यू आर अपसेट, इट्स कमिंग फ्रॉम योर थॉट्स, इफ यू आर एंग्शियस, इट्स कमिंग फ्रॉम योर थॉट्स। सो प्लीज कोशिश करें कि आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो अ, ऐसी बातचीत में और ऐसी चीज़ें पढ़ने में और ऐसे टीवी प्रोग्राम देखने में जाए जो इंफॉर्मेटिव हैं, जो सही डायरेक्शन देते हैं। घर की जिम्मेदारियों में ऐसी थिंकिंग हो जिसमें कि हम एक दूसरे के लिए भी सोचते हैं और हेल्पफुल हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी एक मेंटल हेल्थ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर पाएंगे। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कभी लो फील कर रहे हैं, आपके जहन में उससे थोड़ी देर पहले किस तरह के थॉट्स थे, और जहाँ से भी आपको कोई प्रोवोकेटिव या पैनिक इंड्यूसिंग इंफॉर्मेशन कोई फॉरवर्ड करता है, प्लीज वो ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे माहौल में वो दे ऐड फ्यूल टू द फायर। सो मेरे पास करीब 3 मिनट और हैं, जिसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आज एक ऐसा दौर है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और इंसान को अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उस अनसर्टेनिटी के ऊपर इमोशनली फोकस्ड होने के बजाय और अपने आप को डिसएम्पावर्ड फील करने के बजाय, आप अपने माइंड को उस सोच पर ले जाएं जिस चीज़ की सर्टेनिटी कुछ हद तक, प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ हद तक आपके इख्तियार में है, कि आज सुबह उठकर मैंने क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं आज के, आज मेरे हैप्पी मोमेंट्स क्या थे, प्यारी प्यारी बातचीत हो, अच्छे मोमेंट्स हों। और जो खेल फैमिली से दूर हो गए थे, जिसमें कि इंटरैक्टिव खेल होते थे जैसे कि लूडो और कैरम, जहाँ सब अपनी अपनी स्क्रीन लेकर अलग नहीं बैठे होते थे, मुझे लगता है दैट कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्दी एंड स्ट्रेंथन योर लव रिलेशनशिप्स। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि अपनी मेंटल हेल्थ का और दूसरों की मेंटल हेल्थ का, दोनों की जिम्मेदारी आप पर है। और इसके बहुत से तरीके होते हैं करने के, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इज how do you interpret whether it is a big reality like corona or the smaller reality like आज किसने क्या तोड़ दिया, किसी से भी गलती होती है तो गुस्सा उस वक्त बिल्कुल आपको नेगेटिव बना देगा। सो प्लीज मेक श्योर that you are yourself very positive, handling even the negative events of day to day in a way, if not positive, at least remain neutral and not negative. So, my best wishes for your journey through this very tedious, very challenging, and very demanding time. Let's hope that you are able to keep yourself safe, that you are doing your social responsibility also, and stay happy and make others happy also, because mental health is finally the root to making sure that your body also stays
healthy. So I take leave now, and I hope that these are some useful points that I've shared. And please do write your questions, and if I'm able to, then I'll give some answers as well. So thank you so much, Asian Literary Society, the whole team. Manoj, thank you very much. I take leave. Goodbye, and God bless you. Stay safe, and have a very, very smooth, healthy journey through this difficult time to better times. Bye bye.